all of you knows the Omkara. First Omkar chants Om. Inhale fully and then while exhaling out you chants Om. Okay. So close your eyes. Hands on your thighs or knees, whatever जो भी आपको comfortable है. And कैसे भी चलेगा, हाँ ऐसे भी चलेगा, हाँ. And concentrate the mind on your breaths. Simply count your breaths. Only 5 breaths. Close your eyes. आंखें बंद कीजिए अंकल. हाँ जी. Simply 5 काउंट कीजिए. हाँ. Now गहरी सांस लीजिए. Inhale fully and while exhaling out we should chant Om. Keep the eyes closed for a while. Feel the vibrations. Slowly open the eyes and relax. Good afternoon to everyone. I am Kamlesh Lakhera. I am a science student, science graduates, and at present I am a yoga teacher and also yoga therapist. I have been associated with Yoga Vidya Niketan, which renowned institute run by Padam Shri Sadashiv Nimbalkar Guruji, and I have been practiced there past, taking the classes, regular batches also, and personally attend the patients or people. Today's our topic is yoga for holistic health. आजकल हम लोग देखते हैं we are so busy in our life that our health, well-being take a back seat to that. We suffer from many health problems. So if we are change some our lifestyle, we can making few change in our lifestyle, then we can achieve a normal health. So first I will take what is health, then what is the meaning traditionally, what is the meaning of yoga, because yoga is not basically a for health, it is a other purpose. But nowadays क्योंकि इसका benefits बहुत है हेल्थ के लिए, तो इसलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं. बट द बेसिक concept is not for health, right? So first I would like to tell you about what is the meaning traditionally, what is the meaning of yoga. Then we see ki, what is the relation between yoga and health, how yoga affects our health, all the body systems, and last we see some yogic practices. Then you have some question answers also, and if time permit, then I will take 1 or 2 meditative practice also. Okay. Then first health जो words है, actually हम लोग बोलते हैं total health, holistic health. Health is automatically means overall health, physical, mental and social, spiritual. The word health is derived from an English word hale, which means wholesome. So overall, so automatically health means, whenever we talk about health means overall health, physical, mental or social. In holistic health, an individual seen as a physical, mental or emotional or environmental or spiritual, all the aspects.
According to World Health Organization, health is a state of well-being, physical, mental and spiritual. It is not a mere absence of disease or complications. So physical health. So physical health means individual mechanically fit for doing their daily day-to-day activities without any problem. So it is said this physical health. Mental health, it is mostly related to our cognitive and emotional well-being, means how the person feel, thoughts, and how the person behave in stressful situations. And social health. Social health means how the person interacts in the society with other peoples, as well as benefit of such interaction in relation to the well-being of that person. If we see the health according to naturopathy, then naturopathy said that human body is made up of Panch Mahabhutas, that is Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash. All the Panch Mahabhutas are inside our body. So if any imbalance in these all the 5 Panch Mahabhutas, then the person leads to disease. If according to Ayurveda, any imbalance in Tridoshas means Vata, Kapha and Pitta, if there is any imbalance, then the person leads to disease. So the health we can see, so whenever we concern with health, because our here keyword is our health, यहाँ पर हमारा कीवर्ड जो हेल्थ है, योग फॉर हेल्थ. So let's how we maintain our health through yoga. So first I would like to tell about some features, traditionally the meaning of yoga. Anyone can tell me the meaning of yoga? Way of life. Yeah, right. Union of body, mind and spirit. Yes, right. So basically yoga is a very old age science. It is science. It is practiced in India thousands of years back. It is not a new. So it is practiced for mainly for spiritual upliftment, self-realization. This is the main aim of yoga at the ancient times. So we can say that it is a spiritual science. It is a empirical science which person experienced it. It is a practical science. Practical है, आप इसको practically अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स आपके ऊपर. योग, द वर्ड योग जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ब है एक युज, विच मीन्स टू ज्वाइन करना, किसी भी चीज को जोड़ना. सो द योग मीन्स union of an individual with supreme reality or universal soul is called as yoga. The union of these two souls known as योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, right? When these two souls merge, then this condition is known as samadhi, moksha or self-realization, and so many others name. So the main aim of yoga is for self-realization. जो हमारे पूर्वज थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो ध्यान रहता था वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और खुद को जानने के लिए, मैं क्या हूँ, क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो उनके दिमाग में ज़्यादा रहते थे, तो दे कैन प्रैक्टिस दिस योग.
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, कुंडलिनी योग, तंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठ योग. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ योग, बट द एम इज सेम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और समाधि. अष्टांग योग is the most famous. Patanjali Yoga Darshan is the oldest text on yoga, which was written by sage Patanjali. He suggested an eightfold path for spiritual upliftment for ordinary people. According to sage Patanjali, जो डेफिनेशन उन्होंने दी है योग की, अकॉर्डिंग टू सेज पतंजलि, व्हाट इज योग? इज अ योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स सिसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड इज योग विथ अवेयरनेस. मीन्स जो हमारे माइंड में जो डिफरेंट तरह के थॉट्स जो आते रहते हैं उसको रोकना ही योग है. उन्होंने जो उनका जो बुक है पतंजलि योग दर्शन, 195 सूत्र है, और उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ओनली इन दिस वन लाइन, योग टू रिस्ट्रेन द माइंड विथ मॉडिफिकेशन ऑफ द चित्त इज योग. एंड अब इसको आप कैसे अचीव करना है, ही एक्सप्लेन 194 सूत्र अबाउट दैट, कि आप कैसे माइंड को जो थॉट्स हैं वो आप रोक सकते हैं. बोलते हैं ना जो मन की चंचलता उसको, तो मीन्स कितना कठिन है माइंड को कंट्रोल करना, जो अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में जो आते रहते हैं. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इवन इफ देखेंगे तो हमारे जो माइंड में है, इन 1 मिनट 600 to 800 थॉट्स आर जनरेटेड इन 1 मिनट. तो कितना आता रहता है हमारे दिमाग में. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट यू द 8 जो उनके 8 अंगाज हैं, जो जिसे 8 फोल्ड पाथ और उन्हें अंग बोलते हैं, तो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि. फर्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं, यम एंड नियम आसन प्राणायाम, बेसिकली इट गिव्स बेनिफिट्स टू आवर हेल्थ. एंड जो लास्ट के जो 3 हैं, धारणा ध्यान एंड समाधि, वो अगर कोई आगे और उसके आगे जाना चाहता है देन वो प्रैक्टिस कर सकता है. पर आज के टाइम में किसी के पास कोई सोचता भी नहीं है कि हमें इस स्टेज तक जाना है. ओनली कि हम लोग अपना हेल्थ मेंटेन करके रखें. उसके बाद दूसरा और मोस्ट फेमस एक जो टाइप है वो है हठ योग. इट इज़ रिलेटेड टू द आवर बॉडी. इट इज़ द बॉडी माइंड स्पिरिट पाथ टूवर्ड्स समाधि. समाधि की ओर जाने के लिए ये बॉडी और माइंड और स्पिरिट तीनों मिला के जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग जो है इज मेनली रिलेटेड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर बॉडी. फर्स्ट हठ योग सजेस्ट आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी आपकी बॉडी और माइंड सबसे पहले बोलेंगे क्या, स्टेबल होना चाहिए, तभी आप जाके आगे समाधि और जो भी है आपका सेल्फ रियलाइजेशन उसकी तरफ बढ़ सकते. तो हठ योग ने ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी और माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है. तो दिस हठ योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. इन हठ योग द स्पिरिट द माइंड एंड द बॉडी इंटीग्रेटेड इन वन यूनिट. उनके हिसाब से जो बॉडी है वो कॉम्बिनेशन है बॉडी का, माइंड का और सोल का. हियर जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, देन व्हाट वी कनेक्ट आवर बॉडी विथ आवर माइंड. वी ट्राई इट. एंड प्रैक्टिस ऑफ हठ योग promotes health and prepares an individual for spiritual aspects of yoga. When Hatha Yoga is concerned with health, its practices ensure positive health, build immunity, and at times treat some psychosomatic elements successfully. Nowadays, Hatha Yoga very popular among people all over the world, because
it's a therapeutic value. In a Hatha Yogic text, there is a special one chapter where they give some asanas which directly cure the disease. So ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हठ योग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं. फॉर सोशल हेल्थ, जैसे वर्ल्ड हेल्थ जो डेफिनेशन थी वहाँ पर उन्होंने सोशल हेल्थ भी बोला था. तो सोशल हेल्थ के लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो हठ योगी की हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है, आसन है, प्राणायाम है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा है, बंद है, क्रिया है, दिस ऑल फॉर बॉडी. बट सोशल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम लोग वी प्रैक्टिस यम एंड नियम. इट इज़ अ वेरी सिंपल नियम है जो हम लोग स्कूल में जब से हम लोग छोटे थे सब हमेशा हम लोग सीखते आए हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. सो यम मीन्स देयर आर सर्टेन रूल्स विच ऑब्जर्व्ड in the society. So these are 5 types of rules: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. सच बोलना है, नॉन किसी को मारना नहीं है, चुराना नहीं है, नॉन स्टीलिंग, देन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, देन नॉन होल्डिंग. अपरिग्रह मीन्स कुछ भी चीज़ जो हमारे काम की नहीं, इन द सेंस हम लोग ज़बरदस्ती उसको होल्ड करके रखते हैं, रिलीज इट. देन नियम, 5 टाइप्स ऑफ नियम. दीज आर द ऑब्जर्वेंसेज विच मेनली प्रैक्टिस्ड फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. दीज आर द तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान. शौच मीन्स प्योरिटी. हमारे शरीर को अंदर से, बाहर से और हमारे माइंड को, योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आप आपके शरीर की शुद्धि कीजिए. तो उसमें कैसे शुद्धि मीन्स एक्सटर्नली हम लोग करते हैं. इंटरनली हठ योग सजेस्ट सम क्रियाज फॉर क्लिनजिंग अवर नसल कैविटीज, अवर ट्रैक, इसोफिगस. तो उस तरह से कर सकते हैं. और माइंड की प्योरिटी हम लोग मेडिटेशन से कर सकते हैं. ठीक. देन है संतोष. किसी भी चीज़ के लिए जो आपके पास है, जैसा भी है, उसके लिए संतोष होना बहुत ज़रूरी है. तप, तप मीन्स जो भी हम लोग काम, तप मीन्स ऐसे जो पुराने टाइप के जैसे तप जो करते थे हम लोग, जो एक इमेज रहता है साधु तप करते, उस टाइप का तप नहीं. यहाँ पर तप से मतलब है कि आप जो भी एक्टिविटी या जो भी आपका कर्म है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आपके बिल्कुल एकदम तप के जैसा करिए. फुल 100% उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ठीक. तो यहाँ पर तप मीन्स सेल्फ स्टडी कि आप हमारे डेली, कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, मतलब कुछ रीज़न नहीं रहता है फिर भी बहुत गुस्सा आता है और हम लोग उस चीज़ को भूल भी जाते हैं, सोचते भी नहीं हैं. इफ़ वी ये जो सेल्फ स्टडी है, स्व अध्याय, अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग वापस इस तरह का अपने आप में रिवीजन करें, रिमाइंड करें कि आज की डेट में क्या हुआ था, हमको गुस्सा क्यों आया था, वहाँ पर कुछ रीज़न था क्या. सो इट इज़ द सेल्फ स्टडी. एंड देन लास्ट इज़ द ईश्वर प्रणिधान. मीन्स सरेंडर टू गॉड. गॉड को सरेंडर करना है. रुपया पैसा ऐसा कुछ नहीं, सरेंडर आप कीजिए. मीन्स आपके ये थॉट जनरेट कीजिए कि आपको सरेंडर करना है आपका ईगो, अहंकार, बिकॉज ईगो इज द मेन प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र, फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, दे आर 5 फैक्टर्स: हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, आहार विहार एंड विश्रांति. हेरिडिटी जो है वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जैसा हमको अपने
पेरेंट्स से मिला है, वो जो भी है वो हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर स्लाइट मॉडिफिकेशन, बट द लास्ट 3 फैक्टर्स दैट इज आहार, आहार मीन्स डाइट, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, विहार, विहार में फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, मॉर्निंग वॉक, वट एवर, और आसन एंड प्राणायाम इज ऑल्सो कम अंदर एक्टिविटी। एंड देन लास्ट इज द विश्रांति, प्रॉपर रिलैक्सेशन। सो दीज 3 फैक्टर्स, अगर हम लोग आहार, विहार एंड विश्रांति, अगर हम लोग ये तीनों फैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग अपना कॉन्सेंट्रेट करें और जो भी प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट लें, देन some physical exercise and proper rest and positive attitude, these all are now asan and pranayam comes under Bihar. So we talk about asan. So main objective of asan is to promote and maintain perfect health, because it is related to our body. Most of the disease are psychosomatic. 80% disease are psychosomatic, like blood pressure, diabetes, and even joints pain also, and others. So asan means psychosomatic postures where the body and mind both are involved. ऐसे postures, then it's said to be an asan. Asan means psychosomatic postures, or it is a set of physical postures that are done in a systematic manner to ensure good health with integration of body, mind and soul. कोई भी पॉस्चर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो योग में जो बताते हैं आसन, जैसे आप लोगों ने भी टीवी में देखे होंगे, बहुत सारे आसन बताते हैं, ये आसन करो, ये आसन करो। तो आसन मीन्स क्या है? कोई भी आसन हो सकता है। इवन इफ यू फॉलो द योगिक प्रिंसिपल एंड यू सिटिंग इन दिस चेयर, यू ऑल्सो कैन डू आसन। सो आसन मीन्स you should apply their yogic principle which are suggested in Patanjali Yoga Darshan by sage Patanjali, then तभी आपको उसका जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा। Then आसन should be performed by yogic principle given by sage Patanjali। तो जो सेज आसन हमें कैसे करना है? आसन, सेज पतंजलि gives the definition of आसन in only one line, स्थिर सुखम आसनम, means any posture, स्थिर steady, सुखम means pleasure and आसन means any posture। तो कोई भी ऐसा posture जहाँ पर आप steady, आपकी बॉडी में स्टेडीनेस है और जो आपको खुशी दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, इफ़ यू फील हैप्पीनेस, देन इट इज आसन। एंड सेकेंड वन इज ही गिव्स प्रयत्न शैथिल अनंत समापतिभ्याम। ऐसे पोस्चर में बैठने के बाद आपको करना क्या है? प्रयत्न शैथिल मीन्स, प्रयत्न मीन्स एफर्ट्स, शैथिल मीन्स मिनिमम, एंड अनंत समापतिभ्याम मीन्स योर माइंड शुड बी engage on infinity। so आसन should be कैसा होना चाहिए? steady, pleasurable and less effortless, and the mind should be fixed on infinity। but infinity, the concept of infinity is समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। then what we do? तो उसके लिए in हठ योग, Hatha Yoga suggests the concept of pran dharana, means concentrate the mind on your breath. So it is the pran dharana. There are 2-3 techniques of pran dharana. So the asan should be steady, pleasurable, effortless, and your mind should be fixed on your breaths. While performing asan, the movements should be slow होना चाहिए, steady होना चाहिए, controlled,
रिदमिक, इस तरह से कोई भी जर्क नहीं देना है, नहीं तो आसन किया और उसमें एकदम से जर्क से पैर उठाया तो वो और ठीक होने की बजाय वहाँ पर और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इन योग, हठ योग सजेस्ट द आसन शुड बी, द आपके जो मूवमेंट्स हैं बहुत स्लो होना चाहिए, एक ही रिदम एक सी होनी चाहिए। जिस रिदम में आपने शुरू किया है इनिशियली वही रिदम में आपको जाना है और उसी रिदम में आपको नीचे आना है। आसन और पोस्चर्स, उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिटेटिव आसन। बाय द practicing of this meditative आसन मेक्स माइंड calm एंड बैलेंस इमोशंस। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं योग में मेडिटेटिव, वेरी सिंपल बट इट गिव्स लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम, लाइक मानस चिंतन, we can do onkar sadhana is also in comes under meditative postures, ajapa jap. And then second one is balancing asan. It helps us to achieving pace and balance the mind, improves our concentration. Third one is strengthening asan. In this category बहुत सारी practices हैं, like forward bend करेंगे, बैकवर्ड बैंड है, साइडवर्ड्स है, ट्विस्ट है, तो ऑल दीज आर कम्स अंडर स्ट्रेंथनिंग आसन। इसमें क्या, व्हाट इट इन्हांस स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, मसल टोन्स, ऑलमोस्ट ऑल बॉडी फंक्शन स्ट्रेंथन्स। हमारे जितने भी अंदर बॉडी फंक्शंस हैं, मीन डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सभी की फंक्शनिंग इम्प्रूव्स होती है एंड होम्योस्टेटिस, बैलेंस, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस इज अ condition inside our body where the internal environment of our body remain constant. हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारा चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर, हर चीज़ का जो एनवायरनमेंट है एक पर्टिकुलर मेंटेन करके चलना पड़ता है। योग यहाँ पर बहुत बेनिफिट देता है। ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग इन हार्मोनी विथ ईच अदर। अभी जो डिफरेंट हमारी योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे हमारे जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, दे अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। वहाँ पर जब हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं तो जो नर्व्स हैं विच आर अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरीफेरी नर्व्स, तो these all nerves are stimulated and activated, improves neuromuscular coordination, strengthens the conscious mind, improves the balancing of the parasympathetic and sympathetic nervous system. It is a autonomic part of the autonomic nervous system. Then glandular system, our endocrine system is the most important in our body. There are different glands which directly pose their juices in the blood. अगर इनमें थोड़ा भी इनबैलेंस हो जाता है तो it affects our health, like in the throat, thyroid and parathyroid gland is the very important glands. Pancreas, it releases insulin. So many of the practices directly affects our these glands. Respiratory system, when we do some practices like Kapalbhati, Shoshan Marg Shuddhi and basically pranayam, it improves our respiratory functioning of the respiratory system, increases the lung capacity because वहाँ पर हम लोग disciplined control breathing करते हैं. Then digestive system, most of the practices affects our digestive systems, improves gastric fire. There are certain practices where we created a pressure, positive और negative pressure, so our internal organs जो रहते हैं हमारे abdomen में एक अच्छी मसाज मिलती है उनको. Circulatory system, blood circulation improves, and if any congestion also removed.
मस्कुलर सिस्टम, मसल्स हमारी हैं, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल टोन इम्प्रूव्स होती है। स्केलेटल सिस्टम फॉर जॉइंट्स, हम लोग जब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेचिंग साइडवर्ड्स और वो सब करते हैं तो वहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब एकदम फ्री हो जाते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैंने बताया ये, हाँ ये सॉरी भुजंगासन, ये प्रैक्टिस भुजंगासन। यहाँ पर जो अगर हमारी स्पाइन है, अगर ये हेल्दी रहेगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन नर्व्स रहती हैं वो स्पाइन से ही निकलती हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इन दिस पोस्चर, दिस इज अ फाइनल पोस्चर ऑफ भुजंगासन, आवर चेस्ट रीजन रेज्ड अप, तो हमारी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉलम है, वो कंप्रेस हो रहा है वहाँ पे। एंड सम प्रेशर इज ऑल्सो कम ऑन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको भी एक अच्छा वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है। साथ में जब हम लोग वापस रिलीज करेंगे, जब वापस हम इनिशियल पोजीशन में आएंगे, देन जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो वहाँ पर एकदम से बढ़ जाता है। तो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो, उनको अच्छी ब्लड सप्लाई वहाँ पर मिलती है, तो उनकी फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है मत्स्यासन, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। Our these two glands are situated in our neck region. It is mainly related to our metabolism process. उसके बाद ये मत्स्येंद्र आसन है, इसमें we gives the complete twist to our spine. These are different postures. धनुरासन है, पवन मुक्तासन है। दिस आसन इज वेरी यूजफुल फॉर, एक तो जो ओबेस पीपल है उनके लिए इट रिमूव्स एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम एब्डोमेन। जो हमारी एब्डोमेन की जो रेक्टाइल मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं इस प्रैक्टिस से। और अगर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, उस केस में ये वाला जो आसन है बहुत हेल्प करता है। इट गिव्स इमीडिएट इफेक्ट। धनुरासन, ये कॉम्बिनेशन है 2-3 आसन का। यहाँ पर भी बैक पेन, दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, दिस इज अ वेरी गुड आसन। एंड here is Supta Vajrasan. This asan is a Chaitanya-asan. Chaitanya-asan gives, और शवासन आपने नाम सुना होगा, it gives a 100% relaxation, but it is the most difficult आसन। देखने में बहुत लगता है कि कुछ नहीं है, हम लोग लेटे हुए हैं, but here the जिस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग करेंगे, तो अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स पीपल नींद पूरा नहीं होता है, अगर प्रॉपर तरीके से आप आधा घंटे भी अगर आपने शवासन किया तो आप अपने आप को इतना फ्रेश महसूस करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप सोए भी हैं कि नहीं सोए। इतना रिलैक्सेशन दिस आसन गिव्स, सो मच रिलैक्सेशन। अभी बेनिफिट्स देखेंगे तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, सम थोड़े से देखते हैं हम लोग। It by regular practices of yoga, it improves self confidence, positive attitude, energy, your energy level enhances, memory, attention, feeling of wellness, flexibility, your joints flexibility, your muscles flexibility, muscles tone, longevity, concentration, neuromuscular coordination, stability of mind, and maintain homeostasis. Reduces anxiety, stress, depression, tension, and also sugar,
कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, वेट, सेल डिटोरेशन, अर्थराइटिस, अस्थमा एट्सेट्रा। कैसे ये जो सारी जो हमारी जो स्ट्रेस है, इफ़ वी डू रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ योग, तो आप उसमें महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा हाउ इट अफेक्ट्स रिलीज अवर स्ट्रेस। सम मेडिटेटिव पोस्चर्स, आजकल आपने देखा होगा, इवन डॉक्टर्स इज ऑल्सो, नाउ अ डेज डॉक्टर्स आर ऑल्सो सजेस्टेड फॉर योग। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं योगा की, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर केवल डाली हुई है। लेकिन ये जो योग है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन हमने महीने भर सीख लिया, ऐसा नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट्स इफ रिजल्ट्स, देन मिनिमम आपको 3 to 4 months इन रेगुलर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क आपके अंदर आया है। आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। हमारे जो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो इवन बॉडी में तो चालू हो ही जाता है डिक्लाइन, सेल हमारी मरती हैं, जो न्यू सेल बनने वाली हैं वो कम बनती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस योग से क्या होता है, वो कम तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है उससे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो ज़रूर हो जाती है। अभी आजकल जॉइंट्स का और मेनली तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये 3 बीमारी, और अर्थराइटिस, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन नॉट सीनियर सिटीजन, most of the ladies suffer from arthritis and frozen shoulders. By regular practice of asanas and pranayam, people maintain their health, holistic health, we can say that very well. So at the last, the yoga are involved in improving the health of the body internally as well as externally, because here body and mind both are involved. Yoga has got the potential to bring prosperity and happiness. Mainly yoga emphasizes on prevention, resistance, protection rather than curing the disease. We use yoga as a preventive measure, not for curing the disease. So we can say that the yoga prescribe a holistic approach of mind, body functioning, proper lifestyle. I told you earlier that change of lifestyle. So what changes? Proper lifestyle including moderate exercise, proper diet, enough sleep, relaxation and positive thinking will definitely maintain the homeostasis, so your overall health automatically improved. There are some proverbs given by great people. Mahatma Gandhi says about health, it is health that is real wealth, and not piece of gold and silver. Also Benjamin Franklin says, God heals and the doctor takes the fees. Voltaire says, the art of medicine consisting of amusing the patient while nature cure the disease. In naturopathy, according to naturopathy, in our body there is a inborn natural power which try to maintain our health. If the person suffer any disease, then it is accidental, और हो सकती है कि समटाइम्स हमने कुछ जो नेचर्स लॉ है, जो हमें जो रूल है जो फॉलो करना चाहिए वो हम लोग नहीं करते, तो इस कारण से डिजीज़ होती है। नहीं तो ऑटोमेटिकली
आवर देयर इज ए इनबॉर्न पावर कि हेल्थ अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है तो पहले बॉडी अपने आप को वहाँ ठीक करने की कोशिश करती है। और समटाइम्स क्या होता है, डिजीज़ हर टाइम डिजीज़ एकदम डरना नहीं चाहिए। डिजीज़ गिव्स अवर एक सिम्टम्स है बॉडी का, हमको वो सिम्टम्स देता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड आवर बॉडी, सो वी टेक केयर ऑफ दैट। सो योग is not only, we cannot say yoga as a only asan pranayam. Yoga means as a life. Yoga is a discipline. Sage Patanjali is also says in his first sutra, योग अनुशासनम। योग इज एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, तो उसे आप आपकी डे टू डे लाइफ में अपनाइए, उसको एज अ वे ऑफ लाइफ रखिए, देन आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। यू शुड प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा 30 मिनट्स भी बहुत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करनी है। एंड देयर आर सम थोड़े से कुछ नेचुरल्स जो हमें जो करने चाहिए, सम रूल्स। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग जो पूरा लाइफस्टाइल है हमारा कैसे चेंज हो गया है, हम लोग सुबह देर से उठते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ आजकल जो हो गई हैं, हम लोग मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए, हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो उस कारण से सारे हमारे जॉइंट्स हैं वो सब स्टिफ हो गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाफ एन आवर भी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे आपको आसन करने हैं, बहुत सारे प्राणायाम करने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 पॉस्चर्स भी अगर आप करेंगे प्रॉपर तरीके से, देन यू फील, आप एकदम, आपको जब भी आप डेली एक 1 मंथ समझो आपने योगिक प्रैक्टिसेस किया, योगासन वगैरह सीखे, और उसके बाद आप पूरा डे आपको पता, एकदम आप फ्रेश महसूस करेंगे, एनर्जेटिक। सो ये चीज़ें हमको एक्सरसाइज में नहीं मिलते। योग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एनर्जी अपनी खर्च नहीं करते हैं, कंजर्व करते हैं। जबकि एक्सरसाइज में क्या होता है, हम लोग फास्ट करते हैं, मोर एंड मोर एनर्जी हम लोग वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। लेकिन योगा में क्या है, स्लो स्टडी मूवमेंट्स है, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रही है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। आपने सुना होगा कैवल्य धाम, जहाँ पर ये जो हम योग के ऊपर रिसर्च चलती रहती है, वहाँ पर साइंटिफिकली प्रूव किया है उन लोगों ने कि जो पद्मासन में, जब कोई भी पर्सन पद्मासन में अगर बैठता है, मेडिटेशन करता है, तो उस समय जो हार्ट बीट्स रहती है, अगर आप कंफर्टेबल चेयर पर बैठे हैं उसका हार्ट बीट्स देखें, और जो एक मेडिटेशन कर रहा है पद्मासन में बैठा है उसका हार्ट बीट्स स्लो रहता है उससे ज़्यादा, मीन्स मोर हार्ट उस समय बहुत रिलैक्स रहता है, उसकी हार्ट बीट्स बहुत कम हो जाती है, इवन वो पद्मासन में बैठा हुआ है। सो वाई कि जो मेडिटेशन करते हैं, समटाइम्स प्रॉब्लम होता है, कई लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, नीज प्रॉब्लम है, तो ऐसा योग में कुछ भी नहीं है कि आप लोग ज़मीन पर बैठ के ही करना है, आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। देयर आर वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस विच डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज एंड साइनस, इधर कैरोटिड साइनस जो हमारे नेक रीजन में रहते हैं, तो जो हमारे जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करते हैं। इफ़ द पर्सन प्रैक्टिस दीज प्रैक्टिसेस रेगुलरली, देन उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सो आई सजेस्ट योगा एज ए वे ऑफ लाइफ। आप उसे अपने रूटीन में लेके आइए, इस तरह से लेके आइए कि आपको ऐसा कुछ ऐसा लगे ही नहीं, जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारी करते हैं, लाइक नहाना है, नाश्ता करना है, वैसे ही आप योग को हाफ एन आवर अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए, तो आप हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। समटाइम्स कुछ डिजीज़ होती हैं एक्यूट, समटाइम्स हो जाता है प्रॉब्लम, हम लोग मेडिसिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है और बस हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, तो उस समय तो जो भी सिम्टम्स हमारे आए हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। बट समटाइम
फिर से वो आते हैं। तो वो सिर्फ डिजीज़, सिर्फ बीमारी देखता है, बाकी और कुछ भी नहीं देखते हैं। आज मैं जैसा मैंने बताया, बहुत सारी आजकल 80 to 90% डिजीज आर रिलेटेड टू आवर स्ट्रेस। हम लोग बोलते हैं, इन जनरल बात करते हैं, स्ट्रेस नहीं, हमको तो कोई स्ट्रेस नहीं, बट स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस है, रहता है। तभी तो आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। आप इसे ज़मीन पे भी बैठ के कर सकते, एनी पोस्चर्स, बट पोस्चर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आंखें बंद करने के बाद ट्राई टू टेक योर माइंड ऑन योर breath. See how your breathing going on. One inhalation, one exhalation, count 1 breaths. Do 10 counts. After that, slightly turn your mind once again. When you inhale, try to fix the gaze on your tip of the nose, and while exhaling out, try to take the mind on your middle of the chest. Do once again for 10 breaths. Slowly once again return from first stage, means take your attention towards your counting your breaths, inhalation, exhalation. And then slowly, very gently open the eyes. कैसा आप कुछ